اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت، جس کا کلی عنوان تاریخ اسلام ہے، اس کا جزوی عنوان تاریخ اہل بیت، اور اس کے ذیل میں امام حسن عسکری کے حالات بیان ہو رہے ہیں، جس کا آج چوتھا درس ہے، چوتھی کڑی ہے سلسلے کی زنجیر کی۔ اور میں نے گزشتہ درس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق اور ائمہ کے متعلق کچھ کتابوں کا ذکر کیا، اور دو ایک باتیں اور بیان کرنی تھی جو بتا نہ سکا۔ آج میں اسی سلسلے کو جو چھوٹ گیا تھا اسے آگے بڑھانا چاہوں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی انفرادی زندگی کے حوالے سے جو میں نے دو دروس پہلے گفتگو کی، اس میں ایک بات مجھے بتانا تھا حسب دستور حکام زمانہ کے حوالے سے۔ تو امام کے زمانے میں جو حکام تھے، آپ نے اپنی امامت کے دور میں 3 حاکموں کو درک کیا ہے۔ سب سے پہلا تو معتز ہے، وہ معتز عباسی کے جو 252 سے 255 تک حاکم تھا، اور اس بیچ اسی حاکم کے دور میں امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یعنی امام علی نقی علیہ السلام سن 254 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں اس کے حکم پر معتمد عباسی کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد 255 میں حاکم بنتا ہے مہتدی، لیکن اس کی مدت زیادہ نہیں چلتی، اور 256 میں ہی پھر اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور معتمد عباسی حاکم بنتا ہے، جو کافی عرصے تک حاکم رہتا ہے، 256 سے لے کے 279 تک۔ معتمد عباسی یہی امام کا قاتل بھی ہے، اور امام کو اس نے شہید بھی کیا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 حکام کا دور آپ کی امامت کے زمانے میں تھا، حالانکہ اس کے پہلے مستعین اور منتصر وغیرہ کا دور بھی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اسی طریقے سے متوکل جو تھا اس کا بھی زمانہ، یعنی متوکل، منتصر، مستعین، ان کے بھی زمانے کو درک کیا ہے امام نے، مگر ان کا جو زمانہ تھا وہ امام حسن عسکری کا زمانہ امامت نہ تھا۔ زمانہ امامت معتز، مہتدی اور معتمد، یہ 3 بادشاہوں کا دور تھا۔ اس میں کچھ سیاسی اعتبار سے حالات سامنے آئے، مگر اسے چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام کے دلائل اور معجزات اور علمی کارنامے کی طرف میں آ جاتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ اس میں امام کی امامت پر اور امام کے کرشمات پر مشتمل اور کرامات پر مشتمل، معجزات پر مشتمل ایک واقعہ وہ ہے کہ جو کتابوں میں بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ نحریر نامی ایک شخص تھا، جب امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ وقت کے ذریعے سے، خلیفہ عباسی کے ذریعے اس کے سپرد کیا گیا، تو وہ امام کو بہت اذیت کرتا تھا۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اس کی جو زوجہ تھی وہ اس ایذا رسانی پر بہت اندوہناک ہوتی تھی، غمزدہ ہوتی تھی، افسوس کرتی تھی، اور وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے تیرے متعلق کہ تو کہیں عذاب سے روبرو نہ ہو، کیونکہ تو اس مرد خیر کو اس طریقے سے پریشان کرتا ہے، اس طریقے سے اذیت کرتا ہے، جبکہ میں اپنے گھر میں اس خیر مطلق سے سوائے کار خیر سرزد ہونے کے کچھ دیکھتا نہیں ہوں۔ مگر چونکہ اس کی طینت خراب تھی، اور جو ظالم ہوتا ہے بہرحال وہ اپنے ظلم اور اپنے ظالمانہ حرکتوں کے نشے میں اس طریقے سے چور ہو چکا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسے لوگوں کو کسی کی نصیحت جو ہے وہ مفید اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی ہے، مؤثر ثابت نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے نصیحت کسی کی۔ چنانچہ بیوی سمجھاتی رہی، مگر اس نے پلٹ کر کے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ آج میں اس انسان کو جو ہے وہ درندوں کے حوالے کر دوں گا، اور درندوں کا جو مرکز ہے اس میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد درندے اس کو کھا جائیں گے۔ اور اس نے سلسلے میں خلیفہ وقت سے خلیفہ عباسی سے اجازت طلب کی، اس نے اجازت دے دی، تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ امام حسن عسکری کو اس جگہ ڈال دیا کہ جو درندوں کے اجتماع کی جگہ تھی، درندے جہاں سب اکٹھا تھے، شیر اور دوسرے اس طریقے کے خطرناک جانور۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب جب شیر کے حوالے کر دیا گیا تو جتنے وہاں کے شیر ہیں اس جگہ کے، وہ امام کو کاٹ کھائیں گے اور امام جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔
खलीफा अब्बासी से ऑलरेडी परमिशन ले चुका था। लेकिन इमाम का ये मुजज़ा उसने देखा, उसके सामने आया कि जब दरिंदों के हवाले किया गया और इमाम ने उससे दरिंदों के मरकज़ को मसल्ला इबादत में या मरकज़ इबादत में तब्दील करते हुए नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, तो वो दरिंदे कि जिनका काम ही है हमला कर देना, वो भूखे दरिंदे बजाय इसके कि इमाम पे हमला करते। हालांकि इससे मुशाबे वाक़यात इसके पहले कि बाज़ अइम्मा के सिलसिले पेश आ चुके हैं। यही मरहला इमाम हसन अस्करी के लिए पेश आया। वो दरिंदे जो है वो इमाम के अतराफ़ में तवाफ़ करने लगे, जैसे कि एक मोमिन जो है खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ करता हुआ क़ुर्ब इलाही का के हुसूल में महव हो जाता है। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे इस इंसान की नज़र तो इस काबे असली को नहीं पहचान रही थी, मगर जानवर इस इंसान से बेहतर थे, नहरीर ज़ालिम से बेहतर थे, कि जो समझ रहे थे कि रूह काबा और जान काबा और अफजल काबा हमारे सामने है, लिहाजा उस काबा असली का तवाफ़ करने में ये जानवर मशगूल हो गए। इसी तरीके से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने इल्मी मोजज़ात से भी और इल्मी कारनामे जो मोजिज़ नुमा कारनामे लगते हैं लोगों को मुतासिर किया और दुनिया इंसानियत की इस्लाह का सबब बने हैं। मैं इमाम के शागिर्दों का और इल्मी कुछ कारनामों का शायद तज़किरा आगे के किसी दर्स में करूं, लेकिन आज मैं एक वाक़या ऐसा बयान करना चाह रहा हूं जो इमाम के सिलसिले से बहुत अहम वाक़या है और इमाम की इल्मी खिदमत भी है, इमाम की कुरान के मुतालिक भी एक अहम खिदमत है। इमाम के ज़माने में शहर में एक शख्स था, आलिम था, मुल्ला था, बहुत पढ़ा लिखा था और लिखता ही पढ़ता रहता था, जिसका नाम था इसहाक़ किंदी। पढ़ा लिखा था, फ़लसफ़ी भी था और अपने को पढ़ा लिखा समझता भी था। इसी ज़ोम में रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। उसके दिमाग में एक चीज़ पता नहीं कहाँ से ये फतूर कर गई, शैतान ने डाल दिया कि कुरान मजीद में कई जगह पर मुतज़ाद चीज़ें भी हैं और कई चीज़ें कुरान की आपस में तनाकुस करती टकराती हैं। तो उसने किताब तहरीर करने का फ़ैसला किया, मुतनाक़ज़ात कुरान पर मुश्तमिल तनाक़ुज़ कुरान मजीद के उन्वान से किताब लिखना शुरू कर दिया। किताब लिखने में जब मशगूल हुआ तो जो है वो कई बार ऐसा होता था कि घर में महदूद कर लेता था अपने को, लोगों से मिलना जुलना तमाम चीज़ें बंद कर देता था, बहुत ज़्यादा मशगूल रहता था। अब उसका एक शागिर्द है जो इमाम हसन अस्करी के पास आता है और आने के बाद कहता है, अपने उस्ताद की नीयत के बारे में बताता है कि उसका ये इरादा है, वो ऐसी ऐसी किताब लिख रहा है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जब सुनते हैं तो ताज्जुब करते हैं और इमाम कहते हैं ये किताब अगर सामने आ गई तो बहुत से लोग गुमराह भी हो जाएंगे। इमाम हसन अस्करी कहते हैं क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने उस्ताद को इस काम से बाज रख सके, पीछे वापस ला सके और मना कर सके? तो वो कहता है कि इसका रास्ता क्या है, इसका तरीक़ा क्या है। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं मैं तुझे मशवरा देता हूँ, जा उसके बिल्कुल नज़दीक हो जा, बिल्कुल करीब हो जा, उसका एतमाद जल्ब कर ले और जब तू जल्ब एतमाद कर ले तो उसके बाद उससे फिर एक सवाल कर और उस सवाल के जवाब में वो अपने नज़रिए से पीछे हट जाएगा। वो पूछता है उसका शागिर्द इसहाक़ किंदी का कि मौला बताइए तरीक़ा क्या है। इमाम कहते हैं जब तू नज़दीक हो जाएगा तो नज़दीक होने के बाद क़ुर्ब हासिल करने के बाद उससे एक सवाल करना। एक रिवायत के एतबार से भरे क्लास में जब वो दावा कर रहा था तनाक़ुज़ कुरान का, तब इसने सवाल किया। तो सवाल क्या किया उसने? इमाम की तालीम के मुताबिक सवाल ये किया कि ये बताइए उस्ताद कि अगर अभी साहिब किताब आ जाए और कुरान मजीद का जिसका कलाम है वो आए और आपसे कहे कि तूने जो खिताब मुराद लिया है हमारी इस बात से, हमारी मुराद ये नहीं बल्कि ये है, तो क्या ये बात सही है कि नहीं? ये हो सकता है, पॉसिबल है कि कहने वाला कुछ कह रहा है और उसकी मुराद यानी मुतकल्लिम की मुराद कुछ और हो और सुनने वाला या पढ़ने वाला कुछ और मुराद ले रहा हो उस लफ्ज़ की। तो उसने कहा इस बात का एहतमाल तो पाया जाता है, तो कहा फिर कुरान के बारे में आप क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं कि अल्लाह जो उसका मुतकल्लिम है वो कुछ और मुराद ले रहा हो और आपके जहन में इस लफ्ज़ से कुछ माना और आ रहा हो। जैसे ही वो सुनता है तो फ़ौरन हक्का बक्का रह जाता है, मबहूत होकर के अपने शागिर्द का चेहरा देखने लगता है और कहता है ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? अच्छा ये बता कि तूने ये बात कहाँ से सुनी और किससे सीखी, किसने तुझसे ये बात कही, ये बात तेरे जहन में किसने इल्हाम की, इल्का की? तो कहता है ये मेरे अपने दिल और
कल में अपने जहन में ये बात आई है तो कहा कि मैं तेरा उस्ताद हूँ, मैं जानता हूँ तेरी सतह इल्मी कितनी है, तू कहाँ तक सोच सकता है। यकीनन ये तेरे जहन की उपज नहीं हो सकती, हतमन किसी मंबअ इल्म से, मंबअ ज़हानत से तेरा राबिता हुआ है कि जिसने तेरे जहन में ये बात डाली है। तो वो कहता है कि उस्ताद आपने सही फरमाया और आप सही समझे। ये बात जो है ये फ़र्जंद रसूल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मुझे बताई है। जब मैंने आपके इरादे के बारे में उनको बाखबर किया तो उन्होंने फरमाया कि अपने उस्ताद से ऐसे ऐसे सवाल करना। इमाम कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि कुरान की जिस आयत से जो मुराद तू ले रहा हो वही मुराद वही खुदा की भी हो और तू तनाक़ुज़ समझ रहा है, हालांकि दो आयतों में तनाक़ुज़ नहीं है। जब उसने बात सुनी तो उसने कहा ये सही है और लाता है सबके सामने अपनी किताब को, अपने ज़ख़ीरे को, जो नहीं मालूम से 10 या 20 या 50 या सैकड़ों सफ़ात जो तहरीर कर चुका था उसको पूरी किताब को जला देता है और इस्तिग़फ़ार करता है। और तो ये कहता है कि यकीनन मैं ख़ता पढ़ता और इमाम हसन अस्करी ने जो बात कही है वही सही बात है। इस तरीके से हमारे अइम्मा ने इल्मी खिदमात अंजाम दी हैं। इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु ने कुरान मजीद के लिए इस तरीके से एक बड़ी खिदमत अंजाम दी और तनाक़ुज़ कुरान पर लिखी जाने वाली किताब को रास्ते में ही रोक दिया और वो मंज़र आम पर ना आ सकी। इस तरीके से इमाम ने तफसीर में, इल्म कलाम में, दूसरे उलूम में बहुत नुमायाँ उमूर अंजाम दी हैं। अपने अजदाद के तरीके से बुज़ुर्ग अपने से माक़बल इम्मा के तरीके से बहुत से अज़ीम शागिर्द को तरबियत किया है और असहाब जो इमाम के हैं उन्होंने इमाम की ज़िंदगी में भी फिर इमाम के जाने के बाद बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। मैंने एक इशारा पिछले इमाम का तस्करा बयान करते हुए मोहम्मद बिन उस्मान अमरी का भी किया था, वो भी आपके शागिर्द थे। इस तरीके से और भी कुछ शख्सियतें हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दुरुस में मैं उसके मुतालिक कुछ बातें आपके हवाले करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।